Let us go further. Compare and contrast the fundamental belief and practices of Jainism and Buddhism. How did these two contribute to religious and cultural landscape of ancient India? Okay, so if we see this question, during the 6th century, nearly 62 heterodox sects emerged, out of which most popular were Jainism and Buddhism. So yes, a good kind of introduction has been given. Similarities बताई हैं, rejected authority of Vedas, believed in non-theistic religion, rejected Varna order. Okay, ये थोड़ा सा correct करना है. Rejected the established Varna order of Vedic time and reformed it, in which Kshatriya were given the topmost priority. तो थोड़ा सा GS के हिसाब से लिख दिया ये पॉइंट. ऑप्शनल के में बहुत ज़्यादा नुआंस्ड होना चाहिए. It can't be like this. Establishment of monastic order for both men and women. So this is something which is correct. The access to religious education was a bit limited in Brahmanism. And this specific part was being addressed by both Buddhism as well as Jainism. Differences अब बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, जैसे कि aim, Buddhism talks about nirvana, Jainism talks about emphasize on enlightenment. Okay, और finally what we talk about है ना, सिद्धलोक तक जाना है. Non-violence, Jainism is more extreme, Buddhism is relatively in the middle path. So that's why consumption of non-veg is allowed in Buddhism. It is completely prohibited in the case of Jainism. Paths are different. Jainism is more extreme path. Buddhism goes for the middle path. Existence of God. Jainism believed in the existence of God, but they were given lesser importance than the Tirthankar. Buddhism didn't reject God as such. Initially they because ये देखो philosophical level का question है, तो इसमें बहुत गलतियाँ भी आती हैं कुछ जगह पे. That's why we should be completely accurate. When Buddha was asked, is there a God? So he said, I do not know. You know it for yourself. So there was no recognition. As the word recognition would have been better rather than rejected. Because later on in the Mahayana Buddhism, Buddha himself was made a deity. Reality, he favors the doctrine of Sayyadvad, etc. So those important doctrines, Anekantvad can be written. Here it focuses more on the Samutpad or the in course for correspondence. Contribution में तो वही बेसिक चीज़ें आपने लिखनी है. With respect to religion, simple rituals were brought in by them. Women were made a part of it. And we see the beginning of the monastic order like Basaddi in the case of Jainism. In the case of your Buddhism, it is Chaitya and Vihara. Various cave architecture, culture में वो वाला part आ जाएगा. ठीक है, तो caves के education centers बन गए नए. And that's why they left a lasting impact on India's religion and cultural landscape. तो बहुत ही short and crisp उन्होंने conclusion यहाँ पे लिख दिया है. So I hope you're able to understand कि whenever we write answers, there should be a specific thought process. Along with thought process, structure should be maintained. And in philosophical types of topics, you should be very, very accurate. Like in this copy also, I have made you observe 2-3 problems which are there. And in philosophical question, it is always there because किसी को भी exact clarity होती नहीं है. ठीक है, तो please make sure उस हिसाब से लिखो इसमें. और इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं. लाइक इवन वी सी डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. कर्मा, द कंसेप्ट ऑफ कर्मा इज समथिंग विच इज डिफरेंट. द कंसेप्ट ऑफ कर्मा इज कंसिडर एज वन ऑफ अ फॉर्म ऑफ कार्मिक पार्टिकल which gets attached to your body and soul, and is the one of the reason of not reaching the path of enlightenment in the case of Jainism. But in the case of Buddhism, karma is more of the at the level of thinking. ठीक है, वो इंटेंशन के लेवल पे आता है. इन द केस ऑफ ब्राह्मणिज्म, कर्मा गेट्स लिंक्ड विद द रिचुअल्स, है ना, कि आप एक्शन जो लेते हो वो कर्मा है. तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज. तो ये थोड़ा फिलॉसफी है. फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहने का ज़रूरत है. Hi, so welcome to Prep Career. Today I am going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से utilize किस तरीके से करें. This is where Dawn comes in.
डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए, बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते, कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते, देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर। इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th, ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे, मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो, ठीक है। एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स। दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो। सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है। अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स। हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे, एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है। हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे। जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा, रफली कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो। और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस, ठीक है। तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है, फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें। दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग, प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोरियोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोरियोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं, एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं, तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए,
ओके उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है. सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end by the beginning of November itself you'll be able to finish off this batch. Alright, so all the very best, thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए. थैंक यू सो मच.